Productions executive. She's also a self-taught henna artist. She's very passionate about pageantry and modeling and dreams to represent India on the international stage. Contestant number 3, Shaina Shirazi, born in the city of vibrance, Mumbai, believes in capturing simplicity in the rawest form. With authenticity as a guide, she believes in telling a story with passion and purpose through the fine arts, Indian classical and pastry arts. She aims to be the voice for the abused and those with special needs and contributes thus to the society. Contestant number 4, ladies and gentlemen, Saloni Gawler is a young and enthusiastic girl from the city of dreams, Mumbai. She's a 22-year-old ambitious girl eager to begin her career passionately in the field of modeling. A student pursuing MBA and working as an IT recruiter, she loves to create art every day on the nail of beautiful ladies. Ladies and gentlemen, our 4th contestant is Sonali Chauhan. She hails from Kharghar, Navi Mumbai, a model, actor, dancer and singer. Sonali completed her bachelor's in mass media in 2020 and is currently pursuing masters in aviation management. She started working at the age of 18 in theatre and as a dance teacher, educating and training kids. Contestant number 6, ladies and gentlemen, is Megha Bhogle. She was born and raised in the city of dreams, Mumbai. She is a home science graduate from the University of Mumbai. Creativity has been her form of expression through the medium of art, craft, dance, since she is highly imaginative. Ladies and gentlemen, contestant number 8, Mihika Nayak, is a first-year student of Bachelor's in Mass Media. She has been born and brought up in Navi Mumbai. Apart from her interest in modeling, she's also passionate about acting. Some of the things that she likes to do in her free time are dancing, reading books, and listening to music. Contestant number 9, ladies and gentlemen, Sakshi Bisave. She's currently pursuing her 2nd year in Bachelor's of Accounting and Finance. She was born and brought up in Navi Mumbai. She's a professional model. Talking about her hobbies, she enjoys drawing, dancing, traveling and learning new skills. Ladies and gentlemen, contestant number 11. Riya Raj is a resident of Mumbai and a student of advertising and marketing. She is deeply passionate about acting, writing and modeling. She aims to spread awareness about mental health and its importance. Contestant number 12, Shraddha Katakur, hails from Solapur. She is currently pursuing her bachelor's in dental surgery and is very passionate about pageantry. She is a trained Bharatanatyam dancer, plays cricket and basketball, and in her leisure... फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 12th सीज़न है और हमने तकरीबन 200 गर्ल्स को शायद ऑडिशंस किया था और उसमें से फाइनल 16 आपके सामने ही है। और जैसा कि हर सीज़न बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही अमेजिंग रहा है, स्पॉन्सर्स का हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है और इस बार भी ये सीज़न उतना ही जगह, इनफैक्ट शायद हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये इस बार का और ज़्यादा ग्रैंड हो। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे कैसे सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, उस पर यू कैन रजिस्टर एंड ऑफलाइन भी होता है ड्यूरिंग द डे ऑफ ऑडिशन। पीपल दे रजिस्टर ऑनलाइन, यहाँ आते हैं ऑडिशंस पे। फिर ऑडिशंस में 2-3 क्राइटेरिया जिन पर उन्हें जज किया जाता है, उनकी वॉक, एक उनकी पर्सनालिटी, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंटेबल हैं हमारे सामने, उन बेसिस पे जज किया जाता है और फाइनल 16 आपके सामने। नवी में से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? नवी में से जो गर्ल्स वगैरह आ रही है, अप्रोच कर रही है, आपको कैसा ओवरऑल? एक्चुअली पैन मुंबई हमको बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट इस बार तो वन ऑफ द कंटेस्टेंट इज फ्रॉम सोलापुर, तो नवी मुंबई से देखिए बेसिकली जिसे ब्यूटी में, जिसे पैजेंट्री में इंटरेस्ट है, वो सभी आके इसमें करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि वो नवी मुंबई से है या बॉम्बे से। मुझे हमेशा पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या नया देखने मिलेगा,
तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जितनी बार भी आप लोग आते हैं हमारे शो पे, एक नया सेट जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, नई ग्राफिक्स को लेके, एंड स्पेशली विद द कंटेस्टेंट, हर साल हमें बेहतर कंटेस्टेंट्स मिलते हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं और नया टैलेंट आता है आपके सामने। सो अगेन फिर से आप आइए, देखिए, सरप्राइज़ होगा आप लोग के लिए, नई चीज़ें, नया कॉम्पिटिशन जो है हमारा ओपन टू ऑल है, तो डेफिनेटली वायरल होता जा रहा है बिकॉज जिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और काफ़ी सारा टैलेंट जो इंडस्ट्री में गया हुआ है, ये नाम सुन के लोग रजिस्टर करना चाहते हैं और बहुत आदाद में लोग रजिस्टर करते हैं। तो हमने कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि मिस नवी मुंबई हो तो नवी मुंबई की लड़की आगे रजिस्टर करे। ये कॉम्पिटिशन ओपन है पूरे पैन इंडिया, तो इसलिए हमारा ये रीच काफ़ी अच्छा है और लड़कियाँ रजिस्टर करती हैं। सर रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्जेस है क्या है? लास्ट ईयर तक हमने रखा था रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपीज़ था, हमारी कोई ग्रूमिंग फ़ी नहीं थी, बट दिस टाइम हमने पूरा रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरा वेव ऑफ किया हुआ है, सो दैट इवन जो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते, सॉरी जो पैसे नहीं भर सकते वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकें और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कॉम्पिटिशन। थैंक यू। तजुर्बा ऐसा है कि जो मैंने ड्रीम लिया था वो ड्रीम मेरा कुछ पूरा नज़र आता है। ऐसा है कि जो कंटेस्टेंट हमारे यहाँ से जीते हुए, हमारे यहाँ से जीते हुए कोई मिस इंडिया में है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो जीते हैं। और मैं अभी आपको ये सीक्रेट भी खोलना चाहता हूँ कि आप इस लॉट में भी और हमारे पिछले लॉट में भी मिस इंडिया में कुछ लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, जो कि आपको आगे हमारे यहाँ से आपको ये खबर मिल पाएगी कि वो मिस इंडिया में सेलेक्ट हुई हैं और हो सकता है कि आगे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सेलेक्ट हुए। कंट्रीब्यूशन है जो हम इतना पैन इंडिया पहुंचने का प्लान करें, पैन मुंबई आउट ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा अब आगे का हमारा यही है। महाराष्ट्र के विदिन तो हमें काफ़ी कंटेस्टेंट्स इस वजह से बताया, सोलापुर वगैरह से भी कंटेस्टेंट्स हैं, तो बस अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नया पूछने जाते हैं ना हमेशा कि नया क्या करना चाहते हैं, अब हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट कई पार्टी हम शायद आपको किसी और सिटी में दें। किस तरीके से होती है और कैसे शेड्यूल होता है, जो लड़कियां भी इसके बाद अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन इसके बाद पार्टिसिपेट करती हैं अगले साल जब अगले साल के लिए तो उनके लिए किस तरीके से ग्रूमिंग की जाती है, तो उनको क्या जानकारी? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर कम्प्लीटली रॉ आते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास पीछे से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हम रॉ कंटेस्टेंट्स लेते हैं क्योंकि उन पे काम करना एक्चुअली ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो आप ओपन टू लर्निंग होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर हम उन्हें 360 पर्सनालिटी ग्रूमिंग देते हैं, राइट फ्रॉम स्पीकिंग टू वॉकिंग द रैम्प जो सिमृति करती हैं, आपने देखा ही हर साल, और मेजरली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड स्टेज फियर निकालने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें हम बहुत माहिर हैं, बिकॉज आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स देखेंगे वो आप यहाँ पर यही चीज़ के साथ देखेंगे, वो स्टेज फियर के साथ आते हैं। और हमारे फिर कंटेस्टेंट्स आगे जाकर मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जैसे सुमन राव पहुँच गई थी, तो ये मिस वर्ल्ड तक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तब हो पाता है जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस लेवल की हो जाती है कि आपका बिल्कुल जो स्टेज फेयर है वो निकाल दिया जाए। सो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जब पर्सनालिटी रिप्रेजेंट की जाए तो सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन एंड वैल्यू सेट्स, जो हमारा एक हमेशा एक थीम रहा है कि हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, इसलिए कई बार हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इंग्लिश में नहीं भी बोल पाते, हम उनसे कहते हैं आप मराठी में बोलो, आप हिंदी में बोलो, आप स्टेज पे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप बोलो, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। आपने देखा हर जगह ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो इस बार हम अपने मेजरली हम हमेशा ये कहते हैं कि इंग्लिश आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, तो हम इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं कि इनको बेसिक इंग्लिश, कल अगर वो मेजरली जाते हैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पर उनके पास इतना बेसिक नॉलेज हो कि वो बोल पाए। सो हमारा मेन क्राइटेरिया ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टू अ लेवल जहाँ पे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच सके, ये मेजर विजन है हमारा, एंड प्लस कल्चर एंड वैल्यू सेट्स। थैंक यू। एक जी इससे पहले 11 कंटेस्टेंट जो जीते, जी। उन्होंने किधर और किसी और जगह जाके कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और कुछ अचीवमेंट्स आपको हिंदी से बताएंगे ज़्यादा। अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स की बात करें हमारे कंटेस्टेंट की, अचीवमेंट्स की बात करें हमारे कंटेस्टेंट की सबसे बड़ा एग्जांपल है सुमन राव, जो मिस इंडिया जीते हैं, मिस वर्ल्ड जीते हैं। उसके बाद दिव्या अग्रवाल हैं जो स्प्लिट्सविला के विनर भी हैं और काफ़ी सारे शोज़ कर रहे हैं, अक्षरा सुनामने हैं, और लास्ट ईयर की हमारी 4 कंटेस्टेंट्स हैं जो इस टाइम मिस इंडिया के टॉप में आई हुई हैं। तो आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता, 4 कंटेस्टेंट एक साल में आना मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लास्ट ईयर में जो हमारी विनर थी ये
अमीषा ठाकुर, वो भी मिस इंडिया हिमाचल बनी थी और बहुत ही जल्द उनका भी एक सरप्राइज़ है भैया, मतलब हर चीज़ बोल नहीं सकता, लेकिन ज़रूर आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, मिस नवंबर में कंटेस्टेंट बनेगा, तो उनकी अचीवमेंट मैं जल्दी अपने भी फिनाले शो तक आपको देता हूँ। ऑडिशन के दौरान लड़की मुझे कुछ नहीं मिला। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। इसका सीन ऐसे है कि हम ये चेक करते हैं कि जो फॉर्म पे डिटेल्स अपने भरे वो कितने सच है कितने नहीं, बिकॉज सीवी पे भी हम कई बार ऐसी स्किल्स डाल देते हैं जो शायद हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली जो हॉबीज़ आपने प्रेजेंट की हैं अपने पेपर पे, क्या एक्चुअली आप में वो है कि सिर्फ बोलने के लिए वहाँ पर डाला गया है। इससे भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से पता चलता है, क्योंकि जब आपने टैलेंट बोला है, क्योंकि हमारा एक टैलेंट राउंड भी होता है, तो ये टैलेंट फिर आप अपने टैलेंट राउंड में दिखा के सब टाइटल जीत कर डालें। सिर्फ टैलेंट तो बहुत होते हैं, फिर स्टैम्प कलेक्शन होता है, किसी का आपको अलग अलग टैलेंट्स होते हैं हॉबी के, तो वो तो सब कुछ तो दिखा नहीं जा सकते स्टेज पर। जी, तो बस वही है कि एक ऐसा ही स्किल आप आकर दिखाएं जो आपको विनिंग टाइटल दे दे, बस वही तो होता है। स्किल्स तो हमारे पास भी सबके पास बहुत सारे होते हैं, बट एक होता है जो आपको विनर बनाता है, बस वही। मेरा सब शुभकामनाएं। Shikara Construction and Shikara Hotel, we are sponsoring this show since 10 years, and I think UI, if you see, every year they are progressing. They are bringing in this show something better and all this, and I think they are doing good job. They are giving, excellent platform to the new generation. They are also getting further chance to come into international platform and all that. I think UNI is giving a good platform to the newcomers. मेरा नाम संजीव कुमार एस के ग्रुप ऑफ कंपनी से, मैं लास्ट 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये 12वां साल है। और मिस नवंबर तो भी ऐसा है कि लड़कियाँ जुड़ना चाहती हैं मिस नवंबर से, को पता है ये पैजेंट अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 में सेलेक्ट होती हैं, उनको मॉडलिंग, एक्टिंग, जब बड़ा पैजेंट मिस इंडिया जैसा, तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। मेरी शुभकामनाएं सब कंटेस्टेंट के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए अपना टाइम निकाल के, आप लोग हमेशा हमारे शो में 4 चांद लगा देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि हम क्या ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को। हम यहाँ पर इनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, वेरन जो आप यूजुअली अगर आप मिस इंडिया में जाते हैं या कोई भी पैजेंट में जाते हैं तो आपकी वॉक टॉक की ट्रेनिंग होती है, तो मैं यहाँ पर वॉक ट्रेनिंग देती हूँ, वेरन मैं उनसे बॉडी पॉस्चर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, उनका मेकअप क्या होना चाहिए, उनका हेयर क्या होना चाहिए, उनको वो कैसे चलने चाहिए, उनको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, हम ये सिखाते हैं यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स पैजेंट्री के बाद वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, तो मॉडलिंग में उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, डिज़ाइनर शूज़, उन सब का हम उनको एडुकेट करते हैं हम उस चीज़ पे। एंड कमिंग टू द गर्ल्स, हम उनमें क्या देखते हैं, पर्सनली मैं उनमें सिर्फ उनकी पर्सनालिटी देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक लड़की यहाँ एक अलग पर्सनालिटी से आती है, हर कोई अलग होता है, सो हमको उनमें उनका बेस्ट वर्जन ढूंढना होता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर। उनका बेस्ट वर्जन ढूंढ के हम उस चीज़ को निखारते हैं, बिकॉज आई फील दैट एवरी गर्ल इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अ पर्सन, एंड बस उनमें से उनका बेस्ट निकाल दो तो आई थिंक वी गेट द बेस्ट प्रोडक्ट एवर, तो हम बस वही करते हैं। थैंक यू। वेट किया था बिकॉज पहले एज एंड देन सम पर्सनल रीजंस थे। फाइनली 2022 में जब मैं आई, मैं सबसे मिली, हरमीत सर, मनमीत सर, सिमृति मैम, एवरीवन, दे वर सो वेलकमिंग, दे वर सो हार्ट वार्मिंग। मुझे लगा ही नहीं कि शायद मैं अनजानों के साथ हूँ, मुझे लगा मेरे को एक और फैमिली मिल गई है। और अगर आप प्रोफेशनलिज्म देखें मिस नवी मुंबई ऑर्गेनाइजेशन का, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैजेंट दैट इज़ अराउंड, क्योंकि मेरे और भी पैजेंट्स में एक्सपीरियंस रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फेमिलैरिटी, फ्रेंडलीनेस, प्रोफेशनलिज्मनेस, ट्रेनिंग से लेके पर्सनल बातचीत तक, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला, सेकंड रनर अप का खिताब, आई थिंक उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज मुझे पूरी फैमिली मिल गई है। कुछ भी हो, मनमीत सर, हरमीत सर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं मेरे फ्यूचर के लिए, इवन फॉर माई स्टडीज़ दे गाइड मी अ लॉट। सो आई थिंक मुझे 2 भाई और मिल गए, मनमीत सर और हरमीत सर में, मुझे सर मिल गए, मुझे मैम इतनी सारी मिली है यहाँ पे, एंड इट हैज़ बिन अ सरियल एक्सपीरियंस। एंड आज यहाँ आके बहुत मेरी यादें भी आ गई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स टॉप 16, एंड दिस इज़ वंस इन। इतने साल से हूँ तो हर साल कुछ नया होता है,
और आई फील जो ग्रूमिंग है जो यहाँ पर मिलती है वो सबसे अच्छी होती है। मैंने अपना फर्स्ट पैजेंट यहाँ से शुरू किया था और उसके बाद मैंने बहुत सारे पैजेंट्स किए, पर जो ट्रेनिंग और जो सीख मुझे हरमीत सर, मनमीत सर और पूरे मिस नवी मुंबई ऑर्गेनाइजेशन से मिली है वो मैं हमेशा लेकर चलती हूँ। इसलिए मैं आज भी यहाँ पर हूँ क्योंकि उनका हमेशा कॉन्स्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस रहा है। सो यस, इस साल नए कंटेस्टेंट, सब कुछ काफ़ी नया है और इस बार सर ने मतलब अपना नेक्स्ट लेवल, आई फील हर साल एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस बार भी डेफिनेटली आई फील कुछ बड़ा होगा और उसके अलावा आई फील जो भी कंटेस्टेंट जीतेगा वो कोई भी पैजेंट में, जो भी नेक्स्ट पैजेंट में पार्टिसिपेट करेगा डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। सो आई फील मिस नवी मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर पैजेंट करियर एंड टू लर्न एंड ग्रूम योर सेल्फ बिकॉज यू हैव द बेस्ट पीपल अराउंड। हमारे ब्रांड का नाम है गुलाम होगा। सबसे पहले तो हरमीत जी का थैंक यू सो मच क्योंकि इन्होंने हमें चांस दिया है एंड दिस इज द सेकेंड ईयर, सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर हमारा यहाँ पे एंड वी आर आउट विद स्पॉन्सर्स एंड इनकी वजह से हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये कमिंग फ्रॉम उल्लासनगर, तो वो जगह से यहाँ पे आना एक नेशनल लेवल पे भी एक अच्छा, हमें हरमीत जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड आई विश ऑल द मॉडल्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। Saksha Kapadia from IIDT, Institute of Fashion and Interior Designing. So I guess this is the 10th year of the collaboration with Miss Navi Mumbai and IIDT and it's been amazing. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मॉडल्स को ही इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं देता है बट हमारे फैशन डिज़ाइनर्स को भी काफ़ी देता है। सो इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर डिज़ाइनर्स गेट टू शोकेस देयर टैलेंट और जैसे जैसे मॉडल्स इनके बड़े बड़े शोज़ में आगे जाते हैं वैसे ही हमारे डिज़ाइनर साइमल्टेनियसली आगे आते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस शो एंड थैंक यू हरमीत एंड इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ मिस नवी मुंबई ऑलवेज। थैंक यू।